Respected Manager Sir Dr. Anil Agarwal ji, Honorable Principal Dr. Sunita Kumar Ma'am, our ex-Principal Dr. Vandana Preti Ma'am, our Program Coordinator Dr. Suman Mishra Ma'am, and all the faculty members of our college, and my dear students. We are honored to have you all with us, ma'am, and thank you so much. And without taking enough time, now I request Dr. Sabahat Shamim to introduce our today's eminent speaker and welcome her to speak on the topic, that is growing sexual offences against women in India, need for systemic changes for the empowerment of women. भारत में महिलाओं के खिलाफ बढ़ते हुए यौन अपराध, महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए प्रणालीगत बदलावों की आवश्यकता. धन्यवाद. And over to you, Dr. Sabahat Shamim. Good afternoon. Thank you, Neetu ma'am, for giving me an opportunity to invite our eminent key speaker for the event. She brings with her experience of more than 20 years and specialized in domain which are meant to empower women and righteousness in society. She has delivered more than 70 lectures on social, legal and human rights issues in different universities and colleges. It is my honor to welcome Dr. Preeti Mishra, Professor and Head of Department of Human Rights, School of Legal Studies from Baba Saheb Bhimrao Ambedkar University, Lucknow. She has an academic qualification of MA in Economics, B.Ed, LLM, LLD in Law from Lucknow University. Her research interest lies in the field of women and gender issues, family violence, human rights of rural and urban poor, marginalized section of society, criminal law, and other development issues concerning human law. She has published more than 130 research articles in different research journals and various books of national and international repute. Professor Mishra has co-chaired a session in AES 16 World Congress on Humanity, Development and Cultural Diversity in China in 2009. Also, she has presented paper in international conferences held in Bangkok and Bangladesh. Ma'am, it is our privilege that you are here with us to grace this event with your knowledge and experience. Now I request you to proceed and enlighten us with your valuable words. Thank you. Over to you, ma'am. Thank you so much, Sabahat Shamim. Thank you so much. Ma'am. Am I audible? Yes, ma'am, you are audible. Please, I am please, keeping ma'am. my video off due to bandwidth problem here. Okay, no issue, ma'am. Okay. First of all, I would like to thank Principal of the college, Dr. Sunita Kumar ji, and ex-Principal Vandana Upreti ji, as well as I would like to thank Neetu Mishra and the coordinator of this webinar. She has been constantly in touch with me for the organization of this webinar, and I really feel honored to be here with you all. As you requested that students will also be here, so I should speak in Hindi. I would like to mix both the languages because most of the time when we are teaching in the classes, we are in English only. So sometimes we do find it difficult to communicate in English so far as the teaching is concerned. Otherwise, all right. So the topic that has been offered to me is growing sexual offences against women in India, need for systemic changes for the empowerment of women. भारत में महिलाओं के विरुद्ध बढ़ते हुए लैंगिक अपराध, महिला के सशक्तिकरण हेतु संस्थागत बदलाव की आवश्यकता. तो सबसे पहले जैसे कि हम लोग देख रहे हैं आजकल भी कि किस तरीके से क्राइम महिलाओं के खिलाफ जो है वो बढ़ रहे हैं. जैसे निर्भया का केस हुआ था 2013 में, उसके बाद बहुत बड़े बदलाव हुए क्रिमिनल जस्टिस एडमिनिस्ट्रेशन में. पनिशमेंट भी काफ़ी बढ़ाया गया, इवन डेथ पेनाल्टी तक रखी गई गैंग रेप के केसेस में. लेकिन वी आर ऑब्जर्विंग कि इस तरह के जो ऑफेंसेज है महिलाओं के खिलाफ, उसमें किसी भी तरह की कोई कमी नहीं आ रही है. रिसेंटली अभी हमारे पास उदाहरण है हाथरस केस का और बलरामपुर केस का, जिसमें बच्चियों को अपनी जान तक गंवानी पड़ी बिकॉज ऑफ दिस गैंग रेप. तो क्यों समाज में इतनी हिंसा व्याप्त है, क्यों महिलाओं के खिलाफ इतने वायलेंस हो रहे हैं, तो इस बात की जड़ में जाने की हमें जरूरत है.
तो इससे पहले कि मैं अपना वक्तव्य दूं इस टॉपिक के ऊपर, लेट अस अंडरस्टैंड कि व्हाई वी नीड टू स्टडी दिस वायलेंस अगेंस्ट वुमेन एंड द स्ट्रेटजीज फॉर द एम्पावरमेंट ऑफ वुमेन। तो जरूरत क्यों है इस बात की कि हम महिलाओं के खिलाफ जो अपराध हो रहे हैं उनकी स्टडी करें, या उनको जो सशक्तिकरण के लिए बहुत सारे नियम कानून बनाए गए हैं उनको हम क्यों जानें। तो जरूरत इस बात की है कि हमारी जो बच्चियां हैं वो महिला सशक्तिकरण की दिशा में अपने भी सार्थक प्रयास कर सकें। इसके लिए जरूरी है कि वो विषय की गंभीरता को समझें, और विषय की गंभीरता को समझने के लिए जरूरी है कि हम पास्ट में भी जाएं, इस बात को एनालाइज करें कि पहले विमेन की पोजीशन हमारे समाज में क्या थी और आज के डेट में महिलाओं की जो स्थिति है वो क्या हो गई है, किस तरीके से महिलाओं के जो ह्यूमन राइट्स हैं उनका वायलेशन हो रहा है। इसके साथ ही साथ हम इस बात को भी सब्जेक्ट को पढ़ते समय जानने की जिज्ञासा रखते हैं कि क्या कारण है और क्या एक्सटेंट है। महिलाओं के खिलाफ जो इतने वायलेंस हो रहे हैं इसके क्या क्या बहुत सारे कारण हैं, क्योंकि प्राचीन में कुछ और कारण थे, लेकिन आजकल जैसे ग्लोबलाइजेशन है, बहुत ज्यादा टेक्निकल एडवांसमेंट है, कंज्यूमरिज्म भी बहुत ज्यादा बढ़ गया है, तो क्या नए कारण हैं जिसकी वजह से महिलाओं के खिलाफ हिंसा बढ़ रही है। और कभी कभी तो ये भी कहा जा रहा है कि महिलाओं के खिलाफ जो हिंसा हो रही है दैट इज हेट क्राइम। एक तरीके से जो अदर पार्ट ऑफ द सोसाइटी है उनके मन में घृणा का भाव है। इट इज लाइक द हेट क्राइम लाइक इट इज इन अदर सोसाइटीज ऑफ द वर्ल्ड। तो इन कारणों को जानने की जरूरत है। इसके अलावा ये भी जानने की जरूरत है कि क्या लॉज हैं, क्या पॉलिसीज हैं जिनके द्वारा हम महिलाओं के जो मानवाधिकार हैं उनका संरक्षण कर सकते हैं। इसके अलावा संस्थागत क्या क्या चीजें हैं, कौन कौन सी ऐसी संस्थाएं हैं, चाहे वो कोर्ट्स हो या हमारी एग्जीक्यूटिव हो या लेजिस्लेचर हो, इनके द्वारा किस तरीके के प्रयास किए गए हैं जिससे कि महिलाओं के खिलाफ हिंसा को रोका जा सके। इसके अलावा बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस भी बनाए गए हैं, जैसे आप ले लिए कि नेशनल कमीशन ऑफ विमेन है, स्टेट कमीशन ऑफ विमेन है, नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन है, स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन है, फिर विधिक सहायता के लिए भी अधिकरण जो है वो बने हुए हैं। तो इतनी सारी संस्थाएं हैं, इतने सारे लॉज हैं, सब कुछ है, लेकिन फिर भी महिलाओं के खिलाफ जो हिंसा है वो लगातार बढ़ रही है। तो अगर हम ये बात करें कि डेटा क्या कह रहा है इस बारे में, तो रिसेंटली अभी नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो ने 2019 में अपनी रिपोर्ट जो है वो जारी की है, जिसके हिसाब से महिलाओं के खिलाफ जो ऑफेंसेस हो रहे हैं, और अगर हम स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज की बात करें तो 2019 में 2018 के मुकाबले 7.3% ऑफेंसेस जो है वो बढ़ रहे हैं। और अगर हम डेटा के टर्म्स में बात करें, नंबर्स के टर्म्स में बात करें, तो 40,05,861 केस अकेले जो है वो महिलाओं के खिलाफ 2019 में रिपोर्ट हुए हैं। तो अगर इसमें हम भागीदारी देखेंगे किस तरीके के अपराध जो है वो महिलाओं के खिलाफ हो रहे हैं, तो सबसे बड़ा जो सेक्शन है हमारे इंडियन पिनल कोड में, भारतीय दंड संहिता में, वो है सेक्शन 498A, जिससे कि सभी लोग मेरे ख्याल से भिज्ञ हैं कि ये क्या सेक्शन कहता है, जहाँ पे क्रुएलिटी बाय हस्बैंड एंड हिज रिलेटिव्स की बात की गई है। तो जो ये 40,05,861 केस है, इनका जो 30.9% है वो केवल इस सेक्शन के अंतर्गत, दैट इज सेक्शन 498 ऑफ आईपीसी, उसके अंतर्गत रिपोर्ट हुआ है। और अगर देखें हम वो केसेस जहाँ पे आउटरेजिंग द मॉडेस्टी ऑफ विमेन है, जो सेक्सुअल ऑफेंसेस जिनकी खास बात हम आज अपने इस लेक्चर में कर रहे हैं, तो जो सेक्शन 354 है दैट इज टॉकिंग अबाउट द आउटरेजिंग द मॉडेस्टी ऑफ अ वुमेन, वो 21.8% जो है वो कमिट हुआ है 2019 में। इसके अलावा किडनैपिंग और एब्डक्शन के केसेस हैं, 364 केसेस रिपोर्ट हुए। और जो रेप के अकेले अगर हम केसेस देखें तो जितने ऑफेंसेस हो रहे हैं उसका 7.9%, यानी कि एक बड़ा हिस्सा ऐसा है जो कि महिलाओं के खिलाफ बलात्कार जैसे अपराध के बारे में है। तो अगर हम पूरी जनसंख्या के टर्म्स में बात करें कि जो पर लाख विमेन पॉपुलेशन है उसमें क्या परसेंटेज है महिलाओं के खिलाफ अपराध का, तो जो टोटल ऑफेंसेस जो महिलाओं के खिलाफ हो रहे हैं उसमें जो सेक्सुअल ऑफेंसेस हैं उनका एक बड़ा हिस्सा है। तो कम से कम 62.4% जो ऑफेंसेस है वो महिलाओं के खिलाफ हैं 2019 में, और ये 2018 के मुकाबले इसमें काफी ज्यादा जो है बढ़ोतरी हुई है।
इसके अलावा अगर हम देखें ऑफेंसेस की बात अगर हम करते हैं तो केवल महिलाएं ही नहीं आती हैं, इसमें वो बच्चियां भी शामिल हैं जिनके खिलाफ जो है बहुत सारी अश्लील हरकतें हो रही हैं या उनके साथ और तरह के लैंगिक अपराध भी हो रहे हैं, दैट इज सेक्सुअल ऑफेंसेस। तो वो आंकड़ा भी अगर हम देखें तो उसमें भी बहुत ज्यादा वृद्धि हुई है 2019 में, 4.5% की इंक्रीज है इसमें इफ वी कंपेयर इट विद द डेटा ऑफ 2018। और अगर पॉक्सो के केसेस हम देखें, प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन अगेंस्ट सेक्सुअल ऑफेंसेस एक्ट, तो अकेले उस विशेष अधिनियम के अंतर्गत कितने केसेस रिपोर्ट हुए हैं, तो उसमें 30.55% जो केसेस हैं वो केवल पॉक्सो के केसेस हैं, यानी कि जो टोटल 100% क्राइम है उसका जो 35% है वो केवल बच्चियों के खिलाफ सेक्सुअल ऑफेंसेस में हो रहा है। तो एक बड़ा नंबर है जो कि महिलाओं के खिलाफ ऑफेंसेस को जो है वो शो करता है। और इसी बात पे जो है रिसर्च करते हुए एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है थॉमसन एंड रूटर्स, इन्होंने जब अपनी स्टडी 2018 में की तो इन्होंने पाया कि जो इंडिया है वो सबसे ज्यादा खतरनाक देश है महिलाओं के लिए, क्योंकि यहाँ पे महिलाओं के खिलाफ जो यौन हिंसा है वो इतना ज्यादा है कि विदेशी लोग यहाँ पे आना पसंद नहीं करते हैं। और जब ये डेटा रिलीज हुआ तो बहुत सारा क्रिटिसिज्म भी हुआ था, क्यों जो है वो हमारे देश को बदनाम किया जा रहा है, तो अन्य देशों में क्या इस तरह की घटनाएं नहीं होती हैं? अन्य देशों में भी होती हैं, लेकिन भारत का भी उसमें एक बड़ा हिस्सा है जिसमें कि महिलाओं के खिलाफ इस तरह के ऑफेंस जो है वो हो रहे हैं। अब अगर हम ये जानने की कोशिश करें अगर डेटा को देखते हुए कि एक्सटेंट ऑफ वायलेंस क्या है, तो एक बहुत कॉमन सी सेइंग है दैट वायलेंस अगेंस्ट वुमेन इज फ्रॉम क्रेडल टू ग्रेव, लेकिन हमें लगता है कि पालने से लेकर के वहां ग्रेवयार्ड तक जाने की बात नहीं है, ये उससे पहले ही महिलाओं के खिलाफ जो है वो हिंसा स्टार्ट हो जाती है। और खासकर सेक्स आधारित, जहाँ पे लिंग के आधार पे हिंसा हो रही है, वो बच्चे के जन्म लेने से पहले ही स्टार्ट हो जाती है। तो इट इज फ्रॉम वूम टू ग्रेव, कि गर्भाशय से लेकर के जब तक कोई महिला एल्डरली वुमन नहीं हो जाती, वयस्क नहीं हो जाती, और जब तक वो मृत्यु को नहीं प्राप्त हो जाती, तब तक उसके खिलाफ किसी न किसी तरह का ऑफेंसेस होते रहते हैं। तो अगर आप इनको एज वाइज भी अगर कैटेगराइज करें तो बच्चियों के खिलाफ किस तरह की हिंसा हो रही है, या जो वयस्क महिलाएं हैं उनके खिलाफ किस तरह की हिंसा है, या बुजुर्ग महिलाएं हैं उनके खिलाफ किस तरह की हिंसा है, और साथ में जो महिलाएं अनमैरिड हैं या मैरिड हैं, क्योंकि एक बड़ा तबका है ये भी है जिसमें कि बहुत सारी महिलाएं अनमैरिड हैं जो कि सिंगल वुमन है, इनके खिलाफ भी बहुत सारी हिंसा हो रही है। क्योंकि हमारा टॉपिक यहाँ पे लैंगिक अपराधों से है, सेक्सुअल ऑफेंसेस से है, तो सेक्सुअल ऑफेंसेस का मतलब होता है कि सेक्स रिलेटेड, कि लिंग के आधार पर किस तरीके से महिलाओं के साथ भेदभाव किया जा रहा है और किस तरह से उनके खिलाफ जो है वो अपराध समाज में हो रहे हैं। तो अगर हम बच्चियों से शुरू करते हैं तो फीमेल फेटिसाइड सबसे पहले आता है, कि गर्भ में ही जो है बच्ची का लिंग जान करके उसकी हत्या कर दी जाती है कि वो जन्म ही ना लेने पाए। तो सबसे पहले फेटिसाइड आता है, फिर इन्फेंटिसाइड आता है। किसी तरीके से अगर उसने जन्म ले भी लिया तो अभी भी हम जानते हैं कि हमारे भारत में कुछ स्टेट्स ऐसे हैं जहाँ पे अभी भी इन्फेंटिसाइड जो है वो इन प्रैक्टिस है। तो चाहे आप राजस्थान ले लीजिए या आप वेस्ट साइड में भी, हरियाणा वगैरह में भी इस तरह की प्रैक्टिसेस चल रही हैं। तो गर्भ में मार देना तो एक आम बात है। और अगर आप देखें 0 से 5 जो एज ग्रुप है उसमें कन्याओं की संख्या बहुत ज्यादा कम हो रही है। तो 112 लड़कों के पीछे 100 लड़कियां केवल हैं। तो ये देखने में तो आंकड़ा छोटा लगता है कि 112 लड़के हैं तो 100 लड़कियां हैं, लेकिन अगर इनको आप करोड़ों में, जैसे मैं अरबों में जनसंख्या है, इस टर्म्स में अगर आप इसको देखेंगे तो ये एक बहुत बड़ा परसेंटेज बन जाता है। तो व्हाई दीज गर्ल्स आर मिसिंग फ्रॉम आवर सोसाइटी, हमारे समाज से महिलाएं क्यों गायब हो रही हैं? क्योंकि या तो उनके गर्भ में हत्या हो रही है, या अगर वो बड़ी हो रही है तो चूंकि हमेशा से लड़कियों को हमारे समाज में बोझ की तरह से देखा जाता है, या एक प्रॉपर्टी की तरह से देखा जाता है, कि घर में उनको संभाल करके बड़ा करना है, उनके साथ कोई अनहोनी ना हो जाए, उनके साथ कोई दुर्घटना ना हो जाए, कहीं उनके साथ लैंगिक अपराध किसी तरह का ना हो जाए। तो महिलाओं को और बच्चियों को एक प्रॉपर्टी के रूप में हमेशा से ट्रीट किया गया है कि उनको सुरक्षित हम दूसरे घर में पहुंचा दें। तो शादी जैसा जो एक इंस्टीट्यूशन है वो बहुत ज्यादा ग्लोरीफाई हमारे समाज में किया गया है, और जिसकी वजह से भी महिलाओं के खिलाफ बहुत ज्यादा हिंसा होती है। अभी रिसेंटली आई हैड अ वेरी ग्रेट सेटबैक। हमारी एक स्टूडेंट है जो LLM कर रही है, तो अचानक से उसने भी टेस्ट देना बंद कर दिया। तो हमने उसको फोन किया कि बेटा तुम टेस्ट क्यों नहीं दे रही हो? तो पहले तो मुझसे बोले कि मैडम मेरा मिसकैरेज हो गया है और मैं बहुत एनीमिक थी तो इस वजह से मैं टेस्ट नहीं दे रही हूँ।
फिर एक दिन उसने फोटो लगाई तो उसके सर के ऊपर भी बैंडेज बंधा हुआ था, हाथ पैरों पे भी बैंडेज बंधा हुआ था। तो हमें फिर जिज्ञासा हुई कि तुम तो कह रही थी कि तुम्हारा मिसकैरेज हुआ है, फिर ये चोट इतनी कहाँ से लगी। मुझे लगा शायद वो कह रही थी कि एनीमिक हो तो गिर गई होगी, शायद इस वजह से चोट आई होगी। देन शी टोल्ड मी कि नहीं, उसके हस्बैंड ने उसको बहुत मारा और उसकी वजह से उसका मिसकैरेज भी हो गया। तो फिर हमने उससे पूछा क्या तुमने केस वेस किया? बोले हाँ हमने केस कर दिया, FIR किया है। तो उसका केस अभी चल रहा है। तो मतलब जो लड़की इतनी पढ़ी लिखी है, LLM भी कर रही है, फिर भी उसके खिलाफ इस तरह का ऑफेंस हो रहा है। तो और सेक्स रिलेटेड ऑफेंसेस भी हो रहे हैं कि अगर गर्भ में पता चला कि लड़की है तो उसको लेकर के भी जो है बहुत सारी हिंसा, घरेलू हिंसा जो है उसके खिलाफ जो है वो की जा रही है। इसके अलावा और भी बहुत तरीके के डिस्क्रिमिनेशन हम लोग देखते हैं जो सेक्सुअल ऑफेंसेस हैं, खासकर जो इंसेस्ट के केसेस हैं। तो NCRB का जो बड़ा डेटा है वो ये भी कहता है कि जो मोर देन 90% केसेस हैं वो घर वालों के द्वारा ही, यानी कि जो सगे संबंधियों हैं उनके द्वारा ही इस तरीके की अश्लील हरकतें की जाती हैं या उनका बलात्कार किया जाता है। और कभी कभी तो इतनी सैडिस्टिक सिचुएशंस हैं जहां पे कि अगर स्टेप फादर है या रियल फादर है वो भी अपनी बच्चियों के साथ गलत व्यवहार करते हैं। तो घर जिसको हम इतना सेफ एनवायरनमेंट समझते हैं, जहां पे समझते हैं कि दुनिया से दूर रह के हम घर के अंदर सुरक्षित हैं, वो प्लेस भी महिलाओं के लिए सुरक्षित नहीं है। तो 90% से ज्यादा जो अपराध है महिलाओं के खिलाफ, इवन जो सेक्सुअल ऑफेंसेस हैं, वो उनके जानने वालों के द्वारा ही, उनके सगे संबंधियों के द्वारा ही या उनके जो दोस्त वगैरह हैं उनके द्वारा ही जो है वो किया जा रहा है। तो ये बड़ी सोचनीय सी स्थिति है कि जो हमारी बच्चियां हैं जो बढ़ रही हैं, जो आगे जाके सिटीजन बनेंगी देश की, तो उनको ही इस तरह की हिंसा का सामना करना पड़ता है। और इस हिंसा की वजह से न केवल उनके फिजिकल स्कैर्स होते हैं, यानी कि न केवल उनको शारीरिक चोटें पहुंचती हैं बल्कि मानसिक रूप से भी उनपे बहुत ज्यादा गलत प्रभाव पड़ता है, जिसकी वजह से कभी कभी एक तो बिल्कुल वो विड्रॉ कर जाती हैं सोसाइटी से, आइसोलेशन में चली जाती हैं, किसी से बात करना पसंद नहीं करती हैं, डिप्रेशन में चली जाती हैं, बहुत हद तक वो पढ़ना लिखना छोड़ देती हैं, एजुकेशन से भी विड्रॉ कर जाती हैं। तो एक बड़ी समस्या है जहाँ पे यौनिक हिंसा हमारी जो छोटी बच्चियां हैं लेस देन 18 ईयर्स ऑफ एज हैं उनके साथ जो हो रही है। अब अगर आप इनसे भी आगे बढ़े, कॉलेज गोइंग गर्ल्स हैं, उनके साथ तो और भी ज्यादा समस्या है। एज वेल एज दे एंटर इनटू प्यूबर्टी, एडोलेसेंस, उनके खिलाफ तो इतनी ऑफेंसेस है कि सड़क पर निकलना भी मुश्किल होता है। तो अगर वो पढ़ने जा रही हैं तो घर से निकल करके स्कूल कॉलेज तक पहुंचना ही उनके लिए बहुत मुश्किल होता है। तो ईव टीजिंग है, सेक्सुअल असॉल्ट है, इस तरह की समस्याओं का सामना उनको करना पड़ता है। तो एक्सटेंट ऑफ वायलेंस अगर हम देखें तो बहुत ज्यादा है महिलाओं के खिलाफ। तो केवल ये बच्चियों और युवा अवस्था की महिलाएं ही जो है इससे परेशान नहीं है या इससे इफेक्टेड नहीं है, बल्कि जो एल्डरली वुमेन हैं उनके खिलाफ यौनिक हिंसा बहुत ज्यादा है। तो अगर आप ले लीजिए सिंगल वुमेन को ले लीजिए, वर्किंग वुमेन को ले लीजिए, तो उनके खिलाफ भी सेक्सुअल हैरेसमेंट के केसेस जो है वो बहुत ज्यादा आ रहे हैं। और इस सेक्सुअल हैरेसमेंट का असर क्या होता है कि जो हैरेसमेंट अगर ऑफिस में उनके साथ हो रहा है तो उनके घर का माहौल खराब होता है, और घर में अगर उनको किसी तरह की हिंसा का सामना करना पड़ रहा है तो उससे उनका जो वर्क प्लेस है वो भी इफेक्टेड हो जाता है। और हिंसा इतनी बड़ी समस्या है कि केवल जो महिला है उसी को ही परेशान नहीं करती, बल्कि उसके जो सगे संबंधी है, उससे जो जुड़े हुए लोग हैं, उनके पेरेंट्स हैं, भाई बहन हैं, उनको भी कहीं ना कहीं जाके इफेक्ट करती हैं। तो ये जो हिंसा की जो बात है, जो मुद्दा है, इट इज अ वेरी वेरी ग्रेव प्रॉब्लम. It not only affects the women against whom the offense has been committed, but her relatives also, her family members also. अगर उस महिला के बच्चे हैं तब उन बच्चों के ऊपर भी बहुत ज्यादा गलत असर पड़ता है. और खासकर जो घरेलू हिंसा है, जो कि इन टर्म्स ऑफ सेक्सुअल वायलेंस है, क्योंकि जो मैरिटल रेप का कॉन्सेप्ट है, दो इट इज नॉट लीगली रिकॉग्नाइज्ड, बट वी ऑल नो दैट इट इज ऑल्सो द फैक्ट ऑफ लाइफ. तो बच्चा जो इन चीजों को घर में ऑब्जर्व कर रहा है तो उसके ऊपर भी कहीं ना कहीं साइकोलॉजिकल स्कैर आते हैं, जो कि उसको एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग बनने में जो है वो बाधा डालते हैं. तो ये हम लोग ने इस तरह से देखा कि जो महिलाओं के खिलाफ हिंसा है, वो किसी भी तरह की हिंसा हो, शारीरिक हिंसा हो, मानसिक हिंसा हो, यौनिक हिंसा हो, ये सारी जो हिंसा है वो किसी न किसी तरीके से महिलाओं की जो साइकोलॉजी है, उसकी जो फिजिक है, उसको वो इफेक्ट करती हैं, एडवर्सली इफेक्ट करती हैं. और इसके जो नियर एंड डियर वंस हैं उनको भी कहीं ना कहीं वो एडवर्सली इफेक्ट करते हैं. तो अब हमें ये जानने की जरूरत है कि कारण क्या है.
क्यों महिलाओं के खिलाफ इस तरीके के ऑफेंसेस हो रहे हैं। तो जैसे कि पहले भी सभी लोग इस बात को डिस्कस करते हैं और बहुत ही कॉमन सा फैक्ट है कि महिलाओं के जो खिलाफ हिंसा है वो इसलिए हो रही है क्योंकि हमारी सोसाइटी जो है वो पैट्रियार्कल सोसाइटी है। तो भले ही महिलाओं ने आज बाहर निकल करके काम करना शुरू कर दिया है, पढ़ भी रही हैं, समाज में अच्छी पोजीशंस भी प्राप्त कर रही हैं, लेकिन उसके बावजूद भी उनके खिलाफ हिंसा जो है वो हो रही है। तो कारणों में अगर हम देखें तो कभी कास्ट के नाम पे है, कभी रिलीजन के नाम पे है, इवन जो रिलीजियस स्क्रिप्चर्स में राइटिंग लिखी हुई है जहाँ पे बहुत ज्यादा जो श्लोक्स हैं या वर्सेस हैं जो हमारे रिलीजियस स्क्रिप्चर्स में वो पुरुषों के फेवर में ज्यादा हैं। जो अभी भी देखिए जो दिए जाते हैं आशीर्वाद, अगर जो कोई विवाहित महिला आ रही है कि पूतो नहाओ और दूधो फलो, दूधो नहाओ और पूतो फलो, कि मतलब जो प्रोजनी है वो लड़का हो। तो कहीं ना कहीं लड़कियों के मन में भी आकांक्षा होती है, इच्छा होती है कि उनके लड़का ही पहले पैदा हो। तो इस तरह की जो एक साइकी है हमारे समाज में, ये कहीं ना कहीं महिलाओं के खिलाफ हिंसा के लिए जिम्मेदार है। और इसके अलावा बहुत सारे सोशल सैंक्शंस हैं हमारे समाज में, बहुत सारी की प्रथाएं हैं, चाहे वो डावरी को लेकर के हो कि शादी होनी है तो डावरी उसमें देना जरूरी है। तो ये भी एक तरह का प्रेशर जो है वो क्रिएट करता है, जिसकी वजह से हमारे समाज में महिलाओं की स्थिति जो है वो बहुत अच्छी नहीं समझी जाती और सोचते हैं कि अगर लड़का होगा तो इन सारे टेंशन से हम लोग फ्री होंगे कि उसके लिए हमको दहेज नहीं इकट्ठा करना है, उसके लिए हमें ये नहीं सोचना है कि कैसे उसको हम सुरक्षित रखें और दूसरे घर में उसको ब्याह के लिए तैयार करें। तो इस तरह की जो एक साइकी है, जो ऑर्थोडॉक्सी है, ये कहीं ना कहीं महिलाओं के खिलाफ हिंसा के लिए जिम्मेदार है। इसके अलावा हमारी जो सोशलाइजेशन प्रोसेस है, समाजीकरण की जो प्रक्रिया है, ये भी बहुत हद तक मुझे लगता है कि जिम्मेदार है, क्योंकि हम शुरू से ही सिखाते हैं कि तुम लड़का हो, तुम लड़की हो, तुम ऐसे पहनो, तुम्हें इस तरह का व्यवहार करना चाहिए, तुम्हें इस तरह का खाना खाना चाहिए। तो कहीं ना कहीं हमारी जो सामाजिकरण की प्रक्रिया है वो मुझे लगता है कहीं ना कहीं बहुत ही डिफेक्टिव है, तो उसमें भी हमें सुधार की जरूरत है। फिर हमारा जो फैमिली स्ट्रक्चर है उसमें हम लोग हमेशा लड़कों को ही ज्यादा इम्पोर्टेंस देते हैं। इसके अलावा अगर मॉडर्न डे की हम कारणों को देखना चाहें तो मॉडर्न डे में जो ग्लोबलाइजेशन है, जो कंज्यूमरिज्म है, इंडिविजुअलिज्म जो बढ़ा है कि हम लोग अब इस बात पे ज्यादा ध्यान देते हैं कि हम अपने आप को कैसे आगे बढ़ाएं। तो जैसे नेचर में दो एंटिटीज हैं, मेन भी है, वुमेन भी हैं, बोथ आर देयर, लेकिन जो इंडिविजुअलिज्म है उसने कहीं ना कहीं एक कंपटीशन की भावना को जन्म दिया है। पहले हम लोग सुनते थे कि जो है वो पति पत्नी जो है गाड़ी के दो पहिए की तरीके से हैं, लेकिन अभी क्या है, एक पहिया अलग जा रहा है, दूसरा पहिया अलग जा रहा है। तो बहुत ज्यादा कॉम्पिटिटिवनेस आपस में ही बढ़ गई है। तो चाहे वो सिबलिंग्स हो, भाई बहन हो या मैरिड कपल्स हो, सभी में आपस में ही बहुत ज्यादा कॉम्पिटिशन्स है, बहुत ही ज्यादा मतलब अपने इंटरेस्ट के लिए ही सोचना है, जिसकी वजह से एक जो सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस है वो कहीं नहीं है, या एक दूसरे के प्रति जो सद्भाव होना चाहिए, जो संवेदनशीलता होनी चाहिए दूसरे वर्ग के प्रति, वो शायद आज हमारे अंदर से खोती जा रही है। तो ये भी मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं महिलाओं को सेंस ऑफ फियर में रखता है, एक डर में, कि उनके पास कोई सपोर्ट सिस्टम नहीं है। तो अगर उनके खिलाफ किसी तरह का अपराध भी होता है तो उसको वो बोलना नहीं चाहती, क्योंकि उनको लगता है कोई सपोर्ट सिस्टम नहीं है, कोई उनके साथ आगे बढ़ करके आगे नहीं आएगा, तो वो किसके सहारे केस को रिपोर्ट करें और आगे बढ़ें। तो इस तरह के जो लॉस ऑफ एफिनिटी है इन द पर्सनल एंड फैमिली रिलेशंस, इसके अलावा बहुत बड़ा कारण जो है वो शराब, अल्कोहलिज्म हमारे समाज में, ये भी कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा हिंसा के लिए जिम्मेदार है। और अभी सबने देखा कि लॉकडाउन में किस तरीके से जब शराब की दुकानें खुली तो अचानक से हिंसा की जो घटनाएं थी उसमें वृद्धि हुई। वैसे भी लॉकडाउन के दौरान भी बहुत सारी हिंसा के केसेस बढ़े। एनसीडब्ल्यू को नया जो है व्हाट्सएप नंबर जारी करना पड़ा, जहां पे कि महिलाएं जो है अपनी समस्याओं को रिपोर्ट कर सकें। तो जहां पे सपोर्ट सिस्टम नहीं है और जहां पे एफिनिटी नहीं है पर्सनल और फैमिली रिलेशंस में, वहां पर भी महिलाओं को हिंसा का सामना करना पड़ता है। इसके अलावा वर्किंग पेरेंट्स हैं, काम पे जा रहे हैं, बच्चों पे ध्यान नहीं दे पा रहे हैं, बच्चे अपने इलेक्ट्रॉनिक्स गैजेट्स में बिजी हैं, एंड वी ऑल नो व्हाट काइंड्स ऑफ पोर्नोग्राफिक मटेरियल इज देयर ऑन द इंटरनेट, और सभी के हाथ में स्मार्ट फोन है, सभी के घर में टीवी है, तो दे आर बीइंग सब्जेक्टेड टू दिस काइंड ऑफ वायलेंस दैट दे आर विटनेसिंग एवरी डे। तो बहुत ज्यादा सेक्स रिलेटेड कंटेंट है इन सब चीजों पे, और परवर्ट सेक्स भी है, ऐसा नहीं कि एवरीथिंग इज वेरी गुड एंड स्मूथ।
तो बहुत ही परवर्ट क्वालिटी की जो चीजें हैं वो इन इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स के ऊपर है, जो कहीं ना कहीं जो एडोलेसेंस माइंड है उसको निगेटिवली इफेक्ट करता है, क्योंकि हम सभी जानते हैं कि जो मानसिक विकास है वो प्यूबर्टी तक अपना कंप्लीट हो जाता है। तो जो ये एक प्रोसेस है सीखने की, समझने की, ऑब्जर्वेशन करने की, वहां पे चूंकि हम ध्यान नहीं दे पा रहे हैं चीजों के ऊपर, तो बच्चे जो है वो गलत चीजें भी सीख रहे हैं। और शेयरिंग की प्रवृत्ति नहीं है। जब से राइट टू प्राइवेसी बहुत बढ़ गया, राइट टू इंडिविजुअलिज्म बहुत बढ़ गया, तो बच्चे अपनी बात को जो है वो पेरेंट्स के साथ शेयर भी नहीं करना चाहते हैं। वो कहाँ जा रहे हैं, क्यों जा रहे हैं, किससे मिलने जा रहे हैं, तो ये सारी इन्फॉर्मेशन भी वो पेरेंट्स के साथ शेयर नहीं करते हैं, जिसकी वजह से भी उनके खिलाफ जो है हिंसा जो है वो कहीं ना कहीं बढ़ती है और उसको रिपोर्ट करने में वो डरते हैं। अब साइबर क्राइम भी बहुत ज्यादा बढ़ा है। साइबर में देखिए वहां पर भी अगर जो बच्चों से जो अजीब अजीब तरह की हरकतें कराई जाती हैं, मतलब गलत तरीके से, और उनकी गलत फोटोग्राफ्स लेकर के उसको फिर वायरल कर दिया जाता है, फिर उसको लेकर उनकी ब्लैकमेलिंग शुरू होती है, उनका ह्यूमिलिएशन शुरू होता है। तो ये बहुत सारा एक तरह से कहें जो मैग्नीट्यूड ऑफ वायलेंस है, इट इज वेरी वेरी ग्रेव, नॉट ओनली अगेंस्ट गर्ल चाइल्ड बट मेल चाइल्ड ऑल्सो। तो जो सेक्सुअल ऑफेंसेस, चूंकि हम यहाँ पे शक्ति मिशन में हैं और खास महिलाओं के लिए बात कर रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं कि जो मेल चाइल्ड है वो सेक्सुअल वायलेंस का नहीं शिकार हो रहा है, वो भी सोडोमाइज हो रहा है, उसके खिलाफ भी परवर्ट सेक्सुअल बिहेवियर जो है वो हो रहा है। तो हमने देखा कि जो हिंसा है वो कित एक्सटेंट तक है, उसका इफेक्ट कितना हमारे समाज के ऊपर पड़ रहा है और उसके कारण क्या क्या है। अब बात आती है कि हमारे पास लीगल प्रोटेक्शन क्या क्या है। तो सबसे पहले अगर हम देखें जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है, तो कॉन्स्टिट्यूशन तो कहीं से भी इस बात में विभेद नहीं करता है कि कौन लड़का है और कौन लड़की है। तो लड़का हो या लड़की, सभी को इक्वल राइट्स मिले हुए हैं। तो प्रीएम्बल टॉक्स अबाउट द राइट टू इक्वलिटी एंड जस्टिस। तो राइट टू इक्वलिटी में हर तरह की इक्वलिटी की बात हो, खाने पीने से लेके काम करना, पढ़ाई, नौकरी, चाकरी, एवरीथिंग, इक्वलिटी हो, अपॉर्चुनिटी। तो ऑल दीज थिंग्स आर राइट गारंटीड अंडर अवर कॉन्स्टिट्यूशन। तो कॉन्स्टिट्यूशन तो किसी भी तरीके से विभेद नहीं कर रहा है। तो आर्टिकल 14 में अगर हम बात कर लें तो राइट टू इक्वलिटी है। आर्टिकल 15 अगर हम अपने संविधान का देखें उसमें प्रोहिबिशन अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेशन है। और स्पेशल जो क्लॉज है आर्टिकल 15 क्लॉज 3, वहां पे ये विशेष उपबंध बनाए जा सकते हैं महिलाओं और बच्चियों के संरक्षण के लिए। तो अगर हम इस आर्टिकल 15 क्लॉज 3 को ही देखें, जिसके पर्सन्स में बहुत सारे लॉज जो है वो बनाए जा सकते हैं, तो महिलाओं को हिंसा से बचाने के लिए कुछ स्पेशल लॉज भी बने हुए हैं। जैसे एम्फेसिस होता है पॉक्सो के ऊपर, प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन अगेंस्ट सेक्सुअल ऑफेंसेस एक्ट 2012। तो ये भी एक बहुत ही महत्वपूर्ण अधिनियम है और इसके अंतर्गत जो सेक्सुअल ऑफेंसेस है, खासकर बच्चों के खिलाफ जो 18 साल के कम हैं, उनके खिलाफ इन ऑफेंसेस को जो है वो डिफाइन किया गया है। लेकिन पॉक्सो को हम जाने इससे पहले जानना जरूरी है कि पॉक्सो एक्ट को क्यों लाया गया, क्योंकि वैसे तो अगर हम देखें कॉन्स्टिट्यूशन हमको हर तरह के राइट्स दे रहा है। राइट टू लाइफ एंड लिबर्टी भी आर्टिकल 21 में दिया गया है, लेकिन जो लड़कियां और बच्चियां फीमेल फेटिसाइड के नाम पे मार दी जाती हैं, उनको आर्टिकल 21 कहीं से भी संरक्षित नहीं कर रहा है। आर्टिकल 23 है जहां पे राइट्स अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन की बात है कि महिलाओं का अश्लील तरीके से शोषण ना हो, उनके खिलाफ किसी तरह की हिंसा ना हो। तो जितने भी फंडामेंटल राइट्स हैं पार्ट 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, उनको अगर हम देखें तो इन राइट्स को होने के बावजूद भी, एंड दीज राइट्स आर नॉट ओनली रिटन इन द कॉन्स्टिट्यूशन, दीज आर इन्फोर्सेबल ऑल्सो। तो अगर इन राइट्स का कहीं ना कहीं वायलेशन हो रहा है तो हम कोर्ट में जाकर के केस भी जो है वो दायर कर सकते हैं। तो लेकिन इतना सब होने के बावजूद भी हिंसा की जो गति है वो कहीं से भी थमने का नाम नहीं ले रही है। फिर हमारे पास फंडामेंटल ड्यूटीज भी हमारे संविधान में, जो आर्टिकल 51A है क्लॉज ई, उसका कहता है कि वी हैव टू रिनाउंस द प्रैक्टिसेस विच आर डेरोगेटरी टू द डिग्निटी ऑफ विमेन। तो इस तरह की मान्यताएं, इस तरह की प्रथाएं जो कहीं ना कहीं महिलाओं की गरिमा को कम करती हैं, ऐसी प्रथाओं का हमें को त्याग करना है। और इससे रिलेटेड लॉ भी बना हुआ है, ऑब्सेनिटी प्रोहिबिशन ऑफ ऑब्सेनिटी एक्ट 1986। लेकिन फिर भी हम देखते हैं कि किस तरीके से महिलाओं का अश्लील तरीके से प्रदर्शन जो है वो किया जाता है, चाहे वो मीडिया में हो रहा हो, चाहे वो न्यूज़पेपर्स में हो रहा हो। तो अगर आप आज का न्यूज़पेपर भी उठा कर दीजिए, सिटी वाला जो पेपर होता है लास्ट पेज, उसमें कितनी पोर्नोग्राफिक जो है वो फोटो में जो है वो आती हैं,
कि आप फैमिली के साथ बैठ करके उस पेपर को देख नहीं सकते हैं। तो महिलाओं को जो इस तरीके से गलत रिप्रेजेंटेशन हो रहा है, जो मिस रिप्रेजेंटेशन है, वो भी महिलाओं के खिलाफ कहीं ना कहीं हिंसा के लिए जिम्मेदार है। तो फंडामेंटल राइट्स होने के बावजूद भी, प्रिएम्बुलर आइडियल होने के बावजूद भी कि हमें सभी को जस्टिस देना है, सोशियो इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल फंडामेंटल ड्यूटीज भी हमारे पास हैं। इसके अलावा डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी हैं, जहां पे राज्यों के ऊपर ये कर्तव्य अधिरोपित किया गया है कि आप इस तरह की पॉलिसीज बनाएंगे जो कि महिलाओं के खिलाफ हिंसा को बढ़ावा ना देती हों बल्कि उसको दबाती हों। बट इसके बावजूद भी बहुत सारी हिंसा हम अपने समाज में देख रहे हैं। इसके अलावा अगर हम हम संरक्षण की बात करें, जो लीगल प्रोटेक्शन की, तो फिर हमारे पास भारतीय दंड संहिता है। भारतीय दंड संहिता में भी बहुत सारे ऑफेंसेस जो है वो महिलाओं के खिलाफ डिफाइन किए गए हैं। तो अगर खास बहुत डिटेल में ना जाकर के, क्योंकि बहुत सारे सेक्शंस हैं और बहुत ही डिटेल में उनको डिफाइन भी किया गया है, बट वी डोंट हैव दैट मच ऑफ टाइम। तो अगर उसमें सेक्शन 294 को लें तो पब्लिक प्लेस पे अगर कोई ऑब्सीन गाने गा रहा है, अश्लील हरकतें कर रहा है, इफ इट शोइंग एनी काइंड ऑफ ऑब्सीन ऑब्जेक्ट, या अपने शरीर का प्रदर्शन कर रहा है और दूसरी महिला को एम्बेरस कर रहा है इस तरीके से, तो दैट इज पनिशेबल अंडर सेक्शन 294। इट इज ऑफेंसेस ऑफ ऑब्सीन एक्ट। तो अगर कोई अश्लील तरह के गाने गा रहा है या अश्लील ऑब्जेक्ट आपको पब्लिक प्लेस में खासकर दिखा रहा है, तो दैट इज एन ऑफेंस। देन सेक्शन 354 इज देयर, आउटरेजिंग द मॉडेस्टी ऑफ अ वुमेन। तो जहां पर महिलाओं की गरिमा को किसी भी तरीके से नुकसान पहुंचाया जा रहा है सेक्सुअली, but the word modesty has not been defined, so it is a very loosely set out term जिसका मतलब कुछ भी निकाल सकते हैं। तो modesty कुछ भी हो सकती है किसी भी महिला के लिए, तो इसकी कोई सेट डेफिनेशन नहीं है। तो एक छोटे से एक्ट से लेकर के एक ग्रेव एक्ट तक भी इसके अंतर्गत कवर होता है। तो सेक्शन 354 है जहां आउटरेजिंग द मॉडेस्टी ऑफ विमेन की बात की गई है। फिर भी ऑल नो कि 2013 में जब क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट हुआ तो बहुत सारे नए ऑफेंसेस उसमें ऐड किए गए। तो सेक्शन 354A में सेक्सुअल हैरेसमेंट को डिफाइन किया गया। पहले जो विशाखा वाला केस आया था विशाखा वाला जो केस था, विशाखा वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान, उसमें सुप्रीम कोर्ट ने सेक्सुअल हैरेसमेंट को डिफाइन किया था। लेकिन चूंकि वो कोर्ट का केस था तो बहुत ज्यादा लोग उसको फॉलो नहीं कर रहे थे। हालांकि इट वॉज मेन मैंडेटरी कि जो भी गाइडलाइन दी गई है विशाखा केस में उसको सेक्सुअल हैरेसमेंट एट वर्क प्लेस पे लागू किया जाए, लेकिन वो नहीं हो रहा था। तो फिर 2013 में एक्ट बना करके उन्हीं गाइडलाइंस को जो है वो एज इट इज सेक्सुअल हैरेसमेंट की डेफिनेशन में ले लिया गया। तो भारतीय दंड संहिता में भी जो नया सेक्शन ऐड हुआ 354A, वो भी सेक्सुअल हैरेसमेंट को डिफाइन करता है और वहां पर भी वही परिभाषा है कि सिंपल जेस्चर से लेकर के कि अगर आपको कोई गलत तरीके से देख रहा है वहां से लेकर के जो और चाहे आपके मतलब व्हाट शुड आई से कि डिसरोबिंग ऑफ विमेन है, दिस इज ऑल्सो कॉल्ड द सेक्सुअल हैरेसमेंट। या कोई किसी को पोर्नोग्राफिक मटेरियल दिखा रहा है या इनवाइट कर रहा है फॉर द पर्पज ऑफ हैविंग अदर काइंड्स ऑफ रिलेशंस। तो ये सारी जो चीजें हैं वो जो लैंगिक अपराध हैं उसके नाम पर सेक्शन 354A में रखी गई हैं। फिर 354B है जहां पर कि डिसरोबिंग ऑफ विमेन की बात है। बहुत समय हम लोग देखते हैं कि किसी को नीचा दिखाना है या किसी से बदला लेना है तो उसके परिवार की महिलाओं को क्या करते हैं, उसको निर्वस्त्र करके समाज में घुमाते हैं। और खास करके हमारी जो SC ST वुमेन है जो कि डिप्राइव्ड सेक्शंस ऑफ सोसाइटी से आती हैं, उनके खिलाफ इस तरह के ऑफेंसेस ज्यादा आएंगे कि गांव में कपड़े उतार करके उनको घुमाया जाता है। तो ये डिसरोबिंग ऑफ विमेन, इसको भी 2013 में पहली बार ऑफेंस के रूप में परिभाषित किया गया। फिर 354C में अगर आप आए तो वॉयरिज्म, कि जहाँ पे किसी महिला की फोटो खींचना किसी प्राइवेट प्लेस में जब वो है एंड शी इज इन्वॉल्व इन सम काइंड ऑफ प्राइवेट एक्ट, तो वहां पे अगर कोई फोटो उसकी खींच रहा है और फिर उस फोटो को जो है वो गलत तरीके से प्रयोग कर रहा है, उसको डिसेमिनेट कर रहा है और लोगों में भेज रहा है उसको, तो वहां पे ये वॉयरिज्म का ऑफेंस नया ऐड किया गया। कि बहुत टाइम होता है कि महिला जो है प्राइवेट स्पेस में है अपने, शी इज इंडल्जिंग इन सम काइंड ऑफ एक्टिविटीज, तो लोग वो फोटोग्राफी कर लेते हैं। और हद तो यहाँ तक भी देखने में आती है कि कभी कभी जो परवर्ट माइंड के हस्बैंड्स होते हैं वही अपनी वाइफ की इस तरीके से फोटो खींच लेते हैं और उनको फिर हैरेस करते हैं, ह्यूमिलिएट करते हैं, या कभी कभी वो उसको
वायरल भी कर देते हैं। इस तरह के भी ऑफेंसेस हम लोगों ने पढ़े हैं, देखे हैं और आसपास अपने खुद विटनेस भी कर रहे हैं इन तरह की चीजों को। फिर ईव टीजिंग को कभी भी हमारे समाज में बहुत ही सीरियस ऑफेंस के रूप में नहीं लिया गया, जिसको कि अब स्टॉकिंग कहते हैं हम लोग। तो सेक्शन 354D जो क्लॉज है उसमें स्टॉकिंग को डिफाइन किया गया कि किसी महिला का जबरन पीछा करना। बहुत टाइम होता है कि स्कूल कॉलेज लड़कियां जा रही हैं और लड़के पीछा कर रहे हैं और उसको घर तक छोड़ करके आएंगे, उसके ऑफिस तक छोड़ करके आएंगे, कॉलेज तक छोड़ करके आएंगे, मतलब ना चाहते हुए भी लड़की के। तो जबरदस्ती जबकि लड़की ने इस तरह से कह दिया है कि वो आप में इंटरेस्टेड नहीं है, फिर भी कोई लगातार अगर पीछा कर रहा है या मोबाइल पे उल्टे सीधे मैसेजेस भेज रहा है, तो ये स्टॉकिंग केवल फिजिकल टर्म्स में नहीं है कि कोई आपके पीछे पीछे चल रहा है। तो इलेक्ट्रॉनिकली भी अगर आप कोई स्टॉकिंग कर रहा है, आपको ईमेल आपको इस तरह के भेजता है या फोन में आपको इस तरीके के मैसेजेस भेजे जा रहे हैं, तो वो भी स्टॉकिंग की डेफिनेशन में आता है। तो ये सारे जो सेक्शंस हैं ये रिलेटिंग टू सेक्सुअल ऑफेंसेस हैं और इसमें सजा भी बहुत ज्यादा है। 3 साल मिनिमम सजा से लेकर के 7 साल तक की सजा है। और अगर सेकेंडरी ऑफेंस है, अगर रिपीटेड ऑफेंडर्स हैं, तो उसमें सजा का जो ग्रेविटी है वो फिर और भी ज्यादा बढ़ जाती है। इसके अलावा जो और सेक्सुअल क्राइम्स हैं, जो रेप है, बलात्कार है, उनसे रिलेटेड भी जो प्रावधान है भारतीय दंड संहिता में, उसमें भी काफी बदलाव 2013 में किए गए। पहले जो मैक्सिमम सजा थी वो 7 साल की होती थी, लेकिन अभी जो सजा है वो मिनिमम सजा भी 20 ईयर्स की है एंड इट में गो टू अप टू द एक्सटेंट ऑफ लाइफ इम्प्रिजनमेंट। तो जहाँ पे गैंग रेप के केसेस हो रहे हैं या परवर्ट नेचर के जहाँ पे सेक्सुअल ऑफेंसेस हैं या जहाँ पे महिलाओं के खिलाफ बलात्कार होता है और उनकी स्थिति इतनी बिगाड़ दी जाती है कि वो वेजिटेटिव स्टेट में आ जाती हैं। जैसे कि आपने अरुणा शानबाग का केस सुना होगा कि वो जो अस्पताल में नर्स थी, उसके साथ उसके गले में चेन बांध के उसको खींच दिया था, तो उसकी जो स्पाइनल कॉर्ड थी वो डिस्ट्रॉय हो गई थी, खराब हो गई थी, जिसकी वजह से वो पैरालिटिक हो गई थी और सालों वो बिस्तर के ऊपर पड़ी रही थी। तो इस तरह के जो सेक्सुअल ऑफेंसेस हैं जो कि बहुत ही परवर्ट नेचर के हैं, जो कि महिलाओं को बिल्कुल मरणासन स्थिति में ला देते हैं, तो इनके लिए अब जो है वो डेथ पेनाल्टी तक का प्रावधान जो है वो किया गया है। इवन जो लड़कियां हैं जो 12 साल से कम की हैं, अगर उन बच्चियों के साथ गैंग रेप हो रहा है तो वहां पर भी डेथ पेनाल्टी का प्रावधान जो है वो किया गया है। तो रेप की जो डेफिनेशन है पहले तो वो चेंज की गई, सेक्शन जो 375 है, अब उसमें केवल पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट नहीं है, बल्कि अगर, क्योंकि हम लोगों ने देखा कि निर्भया के केस में उसके प्राइवेट पार्ट्स में जो है वो रॉड इंसर्ट कर दी थी। इसी तरह से गुड़िया वाला केस देखें तो उसके प्राइवेट पार्ट्स में माचिस डाल दी, मोमबत्ती डाल दी, तो मतलब जैसे वुम्ब न हो करके क्या हो गया, वो एक कमरा हो गया कि कोई भी सामान उसके अंदर जैसे भर दिया। तो मतलब ये क्या है, वेरी वेरी परवर्ट बिहेवियर आई थिंक। तो इसको तो बहुत ही ज्यादा स्ट्रिंजेंट पनिशमेंट इस तरीके के अपराधों के लिए होना चाहिए। तो लेजिस्लेचर ने इस बात को समझा और लॉ को इस बारे में अमेंड किया और जो डेफिनेशन थी उसको भी बदला कि केवल अब इसमें पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट नहीं आएगा, बल्कि अगर कोई ऑब्जेक्ट भी इंसर्ट कर रहा है महिला के प्राइवेट पार्ट्स में या महिलाओं के ही जो बॉडी पार्ट्स हैं उनको मैनिपुलेट करके उससे कोई गलत तरीके से हरकतें करा रहा है, तो वो भी रेप की डेफिनेशन के अंतर्गत उसको रखा गया है। इसके अलावा जहाँ पे कस्टोडियल सेक्सुअल ऑफेंसेस हैं कि जहाँ पे जो व्यक्ति उसके साथ अश्लील हरकत कर रहा है या उसका बलात्कार कर रहा है, अगर वो इन पोजीशन ऑफ अथॉरिटी है, तो अगर वो कोई पुलिस वाला है या कहीं पे वो रिमांड में है, तो वहां पे अगर कोई अथॉरिटी है इन पोजीशन, या जेल में अगर वो महिला है या प्रोटेक्टिव होम्स में महिला कहीं रह रही है, तो वहां वाले जो स्टाफ हैं अगर वो उसके साथ किसी तरह का रेप करते हैं, या और जैसे फिडुशियरी रिलेशनशिप्स हैं जहाँ पे रिलेशनशिप ऑफ ट्रस्ट एंड बिलीफ है, अगर उनमें धोखा दे करके महिला के साथ इस तरह का गलत व्यवहार किया जा रहा है, तो वो एग्रीवेटेड फॉर्म ऑफ सेक्सुअल असॉल्ट जो है वो कहलाते हैं और वहां पर भी पनिशमेंट जो है वो उसकी जो मात्रा है वो कहीं ना कहीं ज्यादा है। तो रेप के केसेस में अगर हम देखें तो सिंपल रेप से लेकर के गैंग रेप तक जो पनिशमेंट है, क्योंकि अलग अलग सेक्शन वाइज हम यहाँ पे नहीं डिस्कस कर रहे हैं क्योंकि बहुत वो लंबा हो जाएगा, तो अगर मिनिमम पनिशमेंट हम यहाँ पे देखें तो 7 साल है और मैक्सिमम पनिशमेंट जो है वो लाइफ इम्प्रिजनमेंट टू डेथ है। और लाइफ इम्प्रिजनमेंट को भी अब चेंज किया गया है। पहले लाइफ इम्प्रिजनमेंट यानी कि जो आजीवन कारावास था, उसका मतलब होता था कि 15 साल या 18 साल या 20 साल,
लेकिन उसको खत्म करके कहा गया है टिल द लाइफ रिमेन्स, यानी कि जब तक वो व्यक्ति जीवित है तब तक उसका आजीवन कारावास जो है वो चलने वाला है। तो जहां पे 12 साल से कम उम्र की जो बच्चियां हैं, अगर उनके साथ कोई ऑफेंस हो रहा है, इस तरह का गैंग रेप हो रहा है, तो उनके लिए डेथ पेनाल्टी है। वेजिटेटिव स्टेट में अगर महिला को ला दिया है बलात्कार करके तो वहां पे डेथ पेनाल्टी है। इसके अलावा जो रिपीटेड ऑफेंडर्स हैं, कुछ तो ऐसे होते हैं कि बार बार सजा भुगतने के बाद भी अपराध करने से बाज नहीं आते हैं। तो ऐसे जो रेसिडिविस्ट जिनको हम लोग कहते हैं लॉ की लैंग्वेज में, जो हैबिचुअल ऑफेंडर्स हैं, रिपीटेड ऑफेंडर्स हैं, उनके लिए भी डेथ पेनाल्टी का प्रावधान किया गया है। तो अगर हम देखें जो लैंगिक हिंसा जो है वो हमारे भारतीय दंड संहिता में कई सेक्शंस में जो है इसको अच्छी तरीके से डिफाइन किया गया है, और जो पनिशमेंट है इसके लिए ये भी बहुत ही स्ट्रिंजेंट जो है वो पनिशमेंट इसके लिए रखे गए हैं। फिर 2012 में जो स्पेशल एक्ट आया, क्योंकि ऐसा हो रहा था कि जो अगर हम बलात्कार की परिभाषा लें तो उसमें वो सारे एक्ट्स कवर नहीं होते हैं जो कि किसी बच्ची के खिलाफ भी हो सकते हैं। फिर मॉडेस्टी जैसा जो टर्म है सेक्शन 354 में, उसको भी कहीं डिफाइन नहीं किया गया है। इसके अलावा जो अननेचुरल ऑफेंसेज है एक छूट गया सेक्शन 377 में, हालांकि थोड़ा सा अभी डाइल्यूट हो गया है। अब अगर कॉन्सेंशुअल अगर अननेचुरल सेक्स है, दैट इज जस्टिफाइड विद इन द प्राइवेट स्पेस, बट अदरवाइज इट इज एन ऑफेंस इफ इट इज कमिटेड अगेंस्ट द चिल्ड्रन। इसके अलावा जो और परवर्ट नेचर का है, सोडोमी है एंड एवरीथिंग, वो स्टिल इट इज पनिशेबल अंडर सेक्शन 377 ऑफ द इंडियन पिनल कोड। तो अगर इन चीजों को देखें तो बहुत सारे एक्ट ऐसे होते हैं जिसको कि हम रेप की परिभाषा में नहीं रख सकते। तो पहले भी था कि चूंकि एक्ट तो 2012 में ही आ गया था पास्को का, और रेप की डेफिनेशन में अमेंडमेंट जो हुई है वो 2013 में हुई है। तो पहले कि वो पेनिट्रेटिव सेक्स को ही लेते थे रेप की परिभाषा में, तो वहां पे जो बच्चियों के साथ गलत हिंसा हो रही होती थी, या मैनिपुलेशन ऑफ बॉडी पार्ट्स है, या इंसर्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स हैं इन द प्राइवेट पार्ट्स ऑफ द गर्ल चाइल्ड, तो वो चीजें वहां पे कवर नहीं हो रही थी। तो इनसे डील करने के लिए लॉ बना था पॉक्सो, प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेस एक्ट। तो इस एक्ट की खास बात यह है कि इसमें जो महिलाओं के खिलाफ लैंगिक हिंसा है इसको बहुत अच्छे तरीके से परिभाषित किया गया है, और इसमें जो लड़कियां हैं वो जो बिलो 18 ईयर्स हैं वहां तक की इसमें इंक्लूड की गई हैं। और ये केवल लड़कियां इसमें नहीं आती हैं, दिस एक्ट इज जेंडर न्यूट्रल। तो अगर जो लड़का है अगर वो भी अगर 18 साल से कम का है और उसके खिलाफ भी अगर कोई लैंगिक हिंसा हो रही है और सेक्सुअल ऑफेंस हो रहा है तो वो भी इस एक्ट के अंतर्गत कवर होता है। तो ये केवल महिलाओं के लिए नहीं है, बच्चियों के लिए नहीं है, ये जेंडर न्यूट्रल एक्ट है। और इसमें डिफरेंट तरीके के जो सेक्सुअल अब्यूजेज हैं उनको डिफाइन किया गया है। इसमें सिंपल सेक्सुअल हैरेसमेंट भी है, इसमें किस तरीके से बच्चों का पोर्नोग्राफिक ट्रीटमेंट होता है, किस तरीके से उनके गलत पोस्चर्स की फोटोग्राफ्स ली जाती हैं, इसको भी डिफाइन किया गया है। फिर सेक्सुअल असॉल्ट है, एग्रीवेटेड फॉर्म ऑफ सेक्सुअल असॉल्ट है, पेनिट्रेटिव सेक्स भी है, फिर नॉन पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट भी है। तो इसमें लैंगिक हिंसा को काफी विस्तृत रूप से कई वर्गों में जो है वो विभाजित किया गया है, और सजा भी इसमें बहुत ज्यादा है। बल्कि अभी लेटेस्ट इसमें अमेंडमेंट हुआ है 2019 में, और नए रूल्स अभी बने हैं इसके मार्च 2020 में। तो अब जो पनिशमेंट है वो भी पॉक्सो एक्ट के अंदर भी पनिशमेंट जो है वो काफी बढ़ा दिया गया है। तो जो यहाँ पे ये है पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट है और एग्रीवेटेड पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट है, वहां पर भी जो पनिशमेंट है वो 20 साल तक के लिए कर दिया गया है। और अगर लड़की 16 साल से कम की है, या मतलब जो बच्चा है लड़का है लड़की 16 साल से कम है, तो उन केसेस में लाइफ इम्प्रिजनमेंट तक की सजा जो है वो हो सकती है। तो हम देख रहे हैं कि धीरे धीरे कानून को कठोर से कठोरतम बनाया जा रहा है, बहुत सारा स्ट्रिंजेंट प्रोविजंस आ रहे हैं, लेकिन जो ऑफेंसेज है, जो लैंगिक हिंसा के सेक्सुअल ऑफेंसेज जो हैं वो महिलाओं और बच्चों के खिलाफ कम नहीं हो रहे हैं। तो पॉक्सो एक्ट में इसको चाइल्ड फ्रेंडली भी बनाया गया है। इसमें जो इन्वेस्टिगेशन प्रोसेस है वो बहुत फास्ट है, इसमें केस को जो है 1 साल के अंदर जो है वो खत्म कर देना है, और बच्चों को जो है वो स्पेशल एनवायरनमेंट दिया जाएगा जहां पे उनसे पूछताछ की जाएगी। एक अलग से पुलिस यूनिट को बनाया गया है, जुवेनाइल पुलिस यूनिट है जो कि चाइल्ड फ्रेंडली होगी, और मतलब थाने में ही एक अलग सेक्शन होगा जुवेनाइल पुलिस यूनिट का जो कि इन बच्चों के केसेस को डील करेगी। इसके अलावा अलग से पॉक्सो कोड भी बनाए गए हैं जहां पे बच्चियों के खिलाफ या बच्चों के खिलाफ अगर हिंसा हो रही है, खासकर से जो यौनिक हिंसा है, तो ये स्पेशल कोर्ट्स में इनको ले जाया जा सकता है।
तो एक चाइल्ड फ्रेंडली लॉ बनाया गया है कि जहाँ पे बच्चे टेरर महसूस ना करें, क्योंकि बहुत समय जो बच्चे होते हैं वो अपनी बात को कह नहीं पाते हैं, क्योंकि उनको लगता है घर में बताएंगे तो उल्टी डांट पड़ती है और ऐसा कोई है नहीं जिससे कि अपनी बातों को शेयर कर सकें। या अगर रिपोर्टिंग होती भी है तो इतनी ज्यादा क्वेश्चनिंग होती है जो कि अपने आप में बहुत ही ज्यादा एम्बेरसिंग होती है। फिर मेडिकल एग्जामिनेशन के लिए ले जाना है, वहां पे भी गलत तरीके से क्वेश्चनिंग होती है, गलत व्यवहार होते हैं। तो इन सब चीजों को देखते हुए लगातार जो है लॉ में अमेंडमेंट किया जा रहा है और एक चाइल्ड फ्रेंडली लॉ जो है वो बनाया जा रहा है। बल्कि अगर आप सामने से रिपोर्ट नहीं कर सकते हैं तो ई बॉक्स क्रिएट किया गया है। तो पॉक्सो एक्ट के अंतर्गत ही इस बात का भी प्रावधान है कि आप इलेक्ट्रॉनिकली भी अपनी कंप्लेंट जो है वो दायर कर सकते हैं। जैसे ऑनलाइन एफआईआर है, उसी तरीके से बच्चे भी चाहें तो जो आपकी कमीशन है, चाइल्ड राइट प्रोटेक्शन कमीशन, उसकी वेबसाइट पे अगर जाएंगे तो वहां पे ई बॉक्स दिया होता है। तो बच्चे अपनी जो कंप्लेंट है, अपनी जो प्रॉब्लम है या उनके खिलाफ अगर कोई ऑफेंस हुआ है तो उसकी रिपोर्ट वो वहां पर कर सकते हैं। काफी कर रही है, लॉ को कठोर से कठोर बनाती जा रही है, लेकिन फिर भी ये ऑफेंसेस रुक नहीं रहे। तो अभी एमएचए ने, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने भी रिसेंटली गाइडलाइन जो है वो दी है कि मैंडेटरी जो है वो केसेस हैं उनको जो है वो महिलाओं के खिलाफ जो है वो टेकअप किया जाए, उसमें एफआईआर जरूर से हो, स्पीडी डिस्पोजल हो उसका। इसके अलावा जो सेक्सुअल ऑफेंसेस है, खासकर उसमें जो कलेक्शन ऑफ एविडेंस है, जो फॉरेंसिक साइंस जिस तरीके से कहता है उस तरीके से एविडेंसेस का जो है वो कलेक्शन किया जाए। क्योंकि होता है कहीं पे रेप हुआ है, सेक्सुअल असॉल्ट हुआ है, तो वहां पे फिर मेडिकल एग्जामिनेशन में ही देर हो जाती है, जिससे कि बहुत सारे वाइटल जो एविडेंसेस हैं वो नष्ट हो जाते हैं। तो जो फॉरेंसिक किट बनाई गई है उस किट का भी प्रयोग करें अथॉरिटी, जो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर्स हैं, ताकि जल्दी से जल्दी रिपोर्ट आए और सही रिपोर्ट आए और जो मामले की तह तक जो है वो पहुंचा जा सके। इसके अलावा ऑफिसर्स को अकाउंटेबल बनाया गया है कि अगर वो एफआईआर नहीं लिखते हैं तो उनके खिलाफ भी एक्शन हो सकता है। इसके लिए 2013 में ही आईपीसी में अमेंडमेंट कर दिया गया था और सेक्शन 166A जो है वो जोड़ा गया था। और तो जो भी पुलिस अथॉरिटी है अगर वो अपना काम नहीं कर रहे हैं, लैक्सिटी है उसमें, तो उनके लिए पनिशमेंट का प्रावधान किया गया है। इसके अलावा वी ऑल आर विटनेसिंग, आप लोग भी ये प्रोग्राम करा रहे हो कि किस तरीके से यूपी गवर्नमेंट ने भी आगे बढ़ करके अभी हाथरस केस के बाद ये इनिशिएटिव लिया है कि महिलाओं के खिलाफ नो टॉलरेंस या जीरो टॉलरेंस पॉलिसी हमको अपनानी है, जिसके तहत ये मिशन शक्ति जो है वो शुरू किया गया है। और अगर कोई भी गलत तरीके से व्यवहार करता है महिला के साथ, खास रूप से अगर यौनिक हिंसा करता है, तो उसको कड़ाई से उसको जो है वो निपटा जाएगा। लेकिन ठीक है कि सरकारें जो है इस तरीके से प्रयास कर रही हैं, बहुत सारे मिशन भी चला रही हैं, लेकिन केवल इन्हीं सबसे समस्याओं का समाधान नहीं होना है, क्योंकि एक कहावत भी है कि गॉड हेल्प दोज हु हेल्प देमसेल्फ। तो जब तक हम अपने अंदर शक्ति को जागृत नहीं करेंगे, तो अभी तो जैसे नवरात्र और दुर्गा भी चल रहा है, तो सभी लोग अपने अंदर जो है, इतनी देवियों की हम लोग पूजा करते हैं, तो सभी अपने अंदर दुर्गा, सरस्वती और लक्ष्मी को जागृत करें, मुझे लगता है। तो सेल्फ हेल्प इज द बेस्ट हेल्प। तो हम अपने आप को एम्पावर करें, तो अपने आप को एम्पावरमेंट कैसे कर सकते हैं? तो उसके लिए जरूरी है हमको कि प्रॉपर एजुकेशन हमारे पास हो, हमारे पास नौकरी भी हो, इसके अलावा हमको पॉलिसी मेकिंग लेवल में भी अपनी बात कहने का मौका हो। तो एम्पावरमेंट, जैसे हमने कहा कि सिस्टेमिक चेंजेस की जरूरत है, एक संस्थागत, तो सारी संस्थाएं, चाहे वो जुडिशरी हो, चाहे हमारा पुलिस पर्सनल हो, सभी में संवेदनशीलता की भी आवश्यकता है, क्योंकि रात दिन काम करते हुए पुलिस वाले भी रोज वो केसेस देखते हुए भी इनसेंसिटिव हो जाते हैं। तो कहीं ना कहीं उनमें भी संवेदनशीलता का अभाव है। जुडिशरी में जजेस भी कभी कभी ऐसे रिमार्क करते हैं जो अगेंस्ट वुमेन होते हैं, या इस तरह के जुमलों का प्रयोग करते हैं जो अगेंस्ट द फेमिनिटी होते हैं। तो जितनी भी संस्थाएं हैं उनको कहीं ना कहीं संवेदनशील बनाने की हमें जरूरत है। और खासकर हमारा जो वैल्यू सिस्टम है हमारे समाज में, जो मूल्यहीनता हो गई है आज, जो संस्कारहीनता हमारे समाज में आज है कि सब चलता है वाला एटीट्यूड, वो एटीट्यूड भी कहीं ना कहीं महिलाओं के खिलाफ हिंसा को जो है वो बढ़ावा दे रहा है। तो महिलाओं और बच्चियों को भी इस बात को समझना पड़ेगा कि वो किस तरीके से जो है वो जो समाज में ये मूल्यहीनता या संस्कारहीनता बढ़ रही है, इससे बचते हुए अपने आप को एम्पावर करें, ज्यादा से ज्यादा एजुकेशन लें। और भी अच्छा है कि अगर वो अपने आप को लीगली एम्पावर करती हैं, तो लीगल एजुकेशन अगर उनके पास है तो वो और भी ज्यादा एम्पावर्ड हो सकती हैं। तो अगर इस तरीके के प्रयास किए जाएं एट ऑल लेवल्स, और खासकर जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं उनमें वर्कशॉप कराई जाएं, और जैसे आप लोग वेबिनार वगैरह करा रहे हो, यहाँ पे महिलाओं को शिक्षित किया जाए कि उनके लिए लॉ क्या है। और हमें लगता है कि केवल लड़कियों को नहीं, अब लड़कों को भी शिक्षित करने की जरूरत है,
कभी होता है कि लड़के ऑफेंसेस करते हैं लेकिन उनको पता नहीं होता है कि ऑफेंस है, उसके लिए क्या सजा हो सकती है, तो दे ऑल्सो नीड टू नो द लॉ रिलेटिंग टू विमेन। तो दोनों ही पक्ष को सेंसिटाइज करने की जरूरत है, दोनों को ही संवेदनशील बनना है। इसके साथ हमारी जो संस्थाएं हैं उनको भी संवेदनशील होना है, तभी मुझे लगता है कि हम एक हिंसा मुक्त समाज की कल्पना जो है वो कर सकते हैं। तो मुझे लगता है कि इसी बात के साथ हम लोग बात को समाप्त करें कि वी वांट टू लिव इन अ वायलेंस फ्री सोसाइटी एंड दैट विल हैपन ओनली व्हेन वी गो फॉर द सिस्टमिक चेंजेस एट ऑल लेवल्स। कि हमको अपने वैल्यूज में भी चेंजेस लाने हैं, जो समाज में अब एक एनोमी की सिचुएशन है उसको खत्म करना है। इसके अलावा हर व्यक्ति अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझे, क्योंकि सरकार सब जगह नहीं हो सकती, तो समाज को भी, समाज में रहने वाले लोगों को भी, और खासकर जो पेरेंट्स हैं, जो टीचर्स हैं, उनको भी अपने ऊपर ये जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी कि कैसे वो समाज को और ज्यादा संवेदनशील और जागरूक बनाए, ताकि हमारा समाज जो है वो अपराध मुक्त हो सके। थैंक यू वेरी मच फॉर गिविंग दिस अपॉर्चुनिटी। Thank you so much, ma'am. Thank you so much for sharing your precious thought to us. और समय के अभाव के कारण मैंने आपको इंटरप्ट किया, उसके लिए मैं दोबारा आपसे माफी मांगती हूँ। एंड नहीं, कोई क्वेश्चन वगैरह हो तो आप पुट अप कर सकते हो। मैम, क्वेश्चन के लिए इतना समय हमारे पास नहीं है। एंड इट वाज इंडीड मोटिवेटिंग एंड एक्सट्रीमली इंफॉर्मेटिव, मैम. And your views would definitely enable to spread awareness amongst our students and their parents to ensure the safety and dignity of women and girls. Thank you so much, ma'am. Thank you. And without wasting enough time, and I would like to request our honorable principal, ma'am, Dr. Sunita Kumar, ma'am, to please address our audience and say a few words to enlighten us, ma'am. Over to you, Sunita, ma'am. Thank you, Neetu ma'am and the Department of Commerce for organizing this webinar. Thank you, PT ma'am. You have definitely बहुत आपने enrich किया सबकी information और knowledge को, और sort of आपने पूरा की बहुत ही सारी information थी. So we are very much thankful to you. एक दो points हैं जो बिल्कुल immediately मैं खाली बोलूंगी, जो आपने पॉइंट किए गर्ल्स के लिए मैं कहना चाहूंगी कि ये उनको खड़े होना है, उनको रियलाइज करना है एक तो अपनी पावर, एंड दूसरा उनको इन्फॉर्मेशन गैदर करनी है। दे शुड नो ऑल द लॉ, दे शुड नो ऑल इन्फॉर्मेशन। अगर ऐसा हैरेसमेंट प्रॉब्लम आ रही है तो वहां कहाँ जाना है, दे शुड नो दिस। इन्फॉर्मेशन इज अ पावर, इन्फॉर्मेशन उनको होनी चाहिए। पहली बात तो ये कहूंगी, सोशलाइजेशन में चेंज की जरूरत है, ये नीड ऑफ द आवर है। पेरेंट्स को, फैमिली को, टीचर्स को, नेबर्स को, हर एक को ये चीजें सोचनी है। तो देयर इज नीड ऑफ चेंज इन सोशलाइजेशन, दैट इज इम्पोर्टेंट। एंड द लॉ एंड इम्प्लीमेंटेशन में गैप है, सो ये जो है वो देयर शुड बी अ नीड टू करने की जरूरत है। सो ऑल दीज 3 पॉइंट्स जस्ट आई वांटेड टू शेयर। बहुत अच्छा आपने मैम डिलीवर किया, एंड नाउ ओवर टू नीतू। अगेन congratulations and thank you so much, ma'am. We all are inspired by great words of wisdom, ma'am, and you have always been a source of inspiration, encouragement, and motivation to us, ma'am. And before winding up the program, I request all the students and guardians to take oath to ensure the equality of girls in the family and their protection in the society. For this, I would like to request our ex-principal, Dr. Vandana Upreti ma'am, to please join us and administer an oath for our students and their parents. And for student oath, one of our student representative, Jaishi Shivato, from BCom semester 3, will repeat after you, ma'am. So, Vandana ma'am, please, आप student की oath student वाली है, ये मेरे छात्रों वाली। जयश्री श्रीवास्तव, आर यू रेडी? ओके, यस, ओके, हाँ, जयश्री रेडी, ओके। मैं भारत के जिम्मेदार नागरिक के रूप में, शपथ लेती हूँ कि सदैव बालिकाओं व महिलाओं का सम्मान करूंगी और उनके अधिकारों की सुरक्षा करूंगी।
मैं प्रत्यक्ष एवं परोक्ष रूप से मैं प्रत्यक्ष एवं परोक्ष रूप से अपने कृत्यों, अपनी कृतियों, शब्दों तथा कर्मों से किसी बालिका एवं महिला के अधिकारों एवं मर्यादा को उनका हनन नहीं होने दूंगा। मैं शपथ लेती हूँ कि मैं बालिकाओं एवं महिलाओं को उनके विकास के लिए समान अवसर प्रदान करने में अपना पूरा सहयोग दूंगा। धन्यवाद। जय हिंद। Thank you, Jayashree. Thank you. Okay, now I will represent myself to take an oath on behalf of the parents, and I will repeat after me, ma'am. Please, Vandana ma'am. ओके। भारत के जिम्मेदार नागरिक के रूप में मैं शपथ लेती हूँ कि मैं अपने बेटे और बेटी में किसी प्रकार का भेदभाव नहीं करूंगी। मैं अपने बच्चों को बचपन से ही जीवन के नैतिक मूल्य सिखाऊंगी और उन्हें सही और गलत का भेद बताऊंगी। जिस प्रकार मैं अपनी बेटी को स्वयं की सुरक्षा के लिए ध्यान रखने को कहती हूँ, उसी प्रकार अपने बेटे को अनुशासन में रखते हुए उसकी भी दैनिक गतिविधियों का पूरा ध्यान रखूंगी। जय हिंद। Thank you so much, Vandana ma'am, for giving your precious time to us, and you really realize the importance of this oath to ensure the security and dignity of women as well as girl child. Thank you so much, Vandana ma'am. And now, at the end, I would like to invite Mrs. Shima Abbas to present a vote of thanks for the successful completion of our entire program. Shima Abbas, over to you, Shima. Thank you, Matima. A very good afternoon to everyone. It is my privilege to propose vote of thanks on behalf of the Department of Commerce to all who have helped us in making the webinar a successful one. First of all, I would like to give my hearty vote of thanks to our keynote speaker, Professor Preeti Mishra ma'am, for graciously accepting our invitation and consenting to be the speaker of today's webinar. Thank you, ma'am, for your very thought-provoking and interesting address on growing sexual offences against women in India. We express our sincere thanks and gratitude for the constant guidance and motivation of our manager, sir. We have been fortunate, assisted by our principal, Dr. Sunita Kumar ma'am. You have been a constant support and you have given us a lot of encouragement. Thank you, ma'am. I express my gratitude to Dr. Vandana Upreti ma'am, our ex-principal, for her guidance and moral support. I also convey my heartfelt thanks to Dr. Suman Mishra ma'am, Coordinator Mission Shakti Program. I am thankful to all the faculty members for gracing the occasion by their presence. I would also like to thank all the parents for their presence. Last but not least, I thank all our wonderful students for their cooperation.
I once again thank everyone for making this program successful. Thank you very much. Thank you so much, Seema. Thank you so much, Geeta. Thank you, Sunita ma'am. Thank you, Vandana madam. Thank you, Sabahat. Thank you, Jayashree. Thank you, Shifra. मैं बस एक चीज मैं कहना चाहूंगी, मैं अपनी महाविद्यालय की प्राचार्य से अनुरोध करती हूँ कि मैम दोबारा हमें ये अवसर प्रदान करें जिसमें किसी भी कार्यक्रम के अंतर्गत हम डॉक्टर प्रीति मिश्रा मैम को फिर से इनवाइट कर सकें, क्योंकि बहुत सारी महत्वपूर्ण जानकारियां उन्होंने बहुत सारे तथ्यों के आधार पे और राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय संस्थानों की जो शोध के आधार पे जो उन्होंने प्रस्तुत करी वो बहुत ही सराहनीय है। तो मैं जानूंगी और हमारे महाविद्यालय में आए और सुनीता हमें अवसर प्रदान। I really feel honored. Thank you so much, Neetu. Thank you. Thank you so much. Thank you, Sunita. Thank you. Thank you, ma'am.